Hey friends, today is 13th May and I'm recording this video for all the students who are preparing for NIMSET exams. So first of all, my introduction. I'm Shubham Kumar. I am currently pursuing my MCA from MNNIT Allahabad, and I'm also working as a intern in Microsoft. For this is my 6 month intern that I'm doing. Before this, I have done my 2 month interns also in Microsoft, which has converted into PPO now. So today, according to this time period and the corona thing that's going on, I understand that you all must be locked inside your rooms, and maybe you are having some low morals for your NIMSET preparation. But guys, don't think about that too much, because you have to prepare for the NIMSET exam, and all this time that you are having with your family, with yourself, utilize all of that to prepare yourself as much as you can. Concentrate on your studies and prepare yourself as much as you can. This condition provides a really good time frame so that you can prepare yourself. You can do a time check that how much time you are taking to solve a problem, or how much time you are taking to solve the complete paper. So you should use the stopwatch process, which I have also used, and you should complete your all of the questions that on which you are struggling, and you can you can revise all the concept. Example, in maths and computer science that you are studying for the exam, and it's a really good time for you, so that you can prepare everything. You are in your homes, but still you can do online studies, and you can pursue your goal. So apart from the time, don't worry about it. It has come and it will pass. Stay safe, stay in, and keep preparing for your exams. Bye bye. Hey guys, I'm Shilpi Gupta and I'm currently pursuing MCA from NIT Trichy. I hope you all are safe at home and taking good care of yourself and your families at home. I know this is really a weird time we all are facing, and most of all must be stressed these days, very stressed these days, because you have to give the exam NIMSET, and the date of the NIMSET has not been yet announced. So I just want to say that this is not the time to be demotivated. You have got ample of time to practice mocks and clear out all the concepts in which you lag behind. And my recommendation to all of you will be to use your time effectively. You should try to solve at least 2 mocks daily and try to analyze it for about 3 to 4 hours thoroughly. And make notes of all the formulas which are rare and which are important. Make a note copy which you will be revising daily, and revising all the important questions, the concepts of the questions, how the questions of coordinates are solved. Revise all the important chapters like vectors, permutations and combinations. Don't run behind the leftover topics which you have left behind. You have learnt the whole year for about 1 to 2 years, so this is the time to brush up all the concepts. And the most important thing is to follow a routine, because you are at home and you're not going anywhere outside in your coaching institutes or meeting your friends. So this is the time to make a routine, follow a proper routine, do physical exercises which will help you release stress. And yes, 10 to 15 minutes of meditation would really work, and try to talk to the mentors or your friends or your seniors, like what problems you are facing these days. So there are only 3 to 4 factors which will help you score good marks in the NIMSET examinations. So you have to give 2 to 3 mocks daily at least, and analyze it, and revise all the course with whatever you have learnt before, and attend the live classes whichever is held in your coaching. And yes, stay safe at home, and all the best for the examination, all of you. Thank you. Hello everyone, I am Manoj Mulchandani, pursuing MCA from NIT Kurukshetra, batch 2K19. I hope you all are safe in this pandemic situation. So coming to the point, you know
that you will be going for NIMSET 2020 post-lockdown, so you need to be prepared and utilize this period of time as a golden opportunity. So I know you're not getting that same atmosphere, same environment that like you get in INPS, so I'm here to quickly remind you about shifting your gears and finishing the race to a brighter side. First things first, remain consistent. You can't lose all your practice in this time. Stay positive, stay relaxed, and stay motivated too. Everyone is expected to upgrade their skills in this situation. So keep your practice up, give mock tests, analyze them, revise all you have learned, and most importantly, believe in yourself that you have learned something. But you just need to take that learning, that practice with your constant efforts to the finish line, that is NIMSET 2020. So all aspirants, give some time to yourself on daily basis, do what you have to do what you love, and be consistent with what you have learned and what you need to remember till the end. All the best. God's alive. Thank you. Hello everyone, my name is Vikas Singh. I am pursuing my MCA HBTU कानपुर. तो बेसिकली बहुत कम शब्दों में बहुत कम टाइम देते हुए मैं आपको बहुत चीज़ें थोड़ी सी बताना चाहूँगा, जिससे शायद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, थोड़ा सा आपको हेल्प मिले, या ऐसा बोलो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आए आपकी डेली रूटीन में. क्योंकि जो इस समय का सिनेरियो चल रहा है कोरोना का, क्वारंटीन, कोरोना एंड लॉकडाउन, तो इसको चलते हुए पढ़ाई का तो बहुत लॉस हुआ है लोगों का. बट एक अच्छी बात यह है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सक रहे हैं, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है. अब जैसे कि कुछ लोगों का मानना ऐसा होगा कि कोचिंग बंद हो गई, मॉक नहीं हो पाए कोचिंग में, तो अब कैसे होगा, क्या होगा. तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. आपकी इकलौती कोचिंग ऐसी कोचिंग नहीं है जो बंद हुई है लॉकडाउन में. ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कोचिंग्स चलती हैं वो सब बंद हैं और कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही है. तो सब क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हैं. तो आपको भी ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है, आपको भी मॉक ऑनलाइन ही देने हैं. ऑनलाइन मॉक दीजिए, ठीक है. उसमें अपना एनालाइज करिए अपनी चीज़ों को. और जहाँ तक कि मेरा मतलब जहाँ हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, या मेरे जो भी जूनियर्स आ चुके हैं और मेरे सीनियर्स जितने भी थे, सबको मतलब पूरा जानते हुए मुझे ये पता है कि मार्च आते आते तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है. मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो एनी हाउ करा ही देते हैं सर, चाहे वो आप कोऑर्डिनेट की बात करिए, प्रोबेबिलिटी की बात करिए, अलजेब्रा की बात करिए, तो हो जाते हैं. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हो जाते हैं. तो उस चीज़ को तो आप अपने ऊपर नहीं कह सकते कि ये कोर्स नहीं हुआ होगा. कोर्स हुआ है, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे होंगे, तो प्लीज़ पढ़िए, ठीक है. मॉक की एक निमसेट मॉक करके एक बुक भी आती है, वो हो सकता है आप लोगों को इस समय मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि मार्केट खुली नहीं है. आप ऐसा करिए, आप उसकी PDF डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए. सर इतने सारे मॉक कराते हैं, पर सबसे अच्छी बात पता है क्या, उन मॉक से आपको इतने क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे. मतलब सीरियसली मैंने तो अपने टाइम में बहुत एक्सपीरियंस किया था कि 8-10 क्वेश्चन तो आप देख के टिक मार दोगे. और ये मतलब लोगों को लगता है कि सीनियर आते हैं और ये सब बोल के चले जाते हैं. जब आप ये पेपर दे लोगे ना, आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस हो जाएगी कि हाँ ऐसा होता है. तो प्लीज़ इस चीज़ को हावी मत होने दीजिए कि मेरे मॉक नहीं हुए, मेरे कोचिंग नहीं हुई. और बहुत अच्छी बात है अगर कोचिंग नहीं चल रही, आपके पास 24 घंटे हैं आपके पास, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, उतना प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर्मूले की जो भी जिसने जिन ने कॉपी बनाई हो वो सब उसको रोज़ रिवाइज करिए और करते रहिए यार. मतलब लास्ट ईयर का आपने रिजल्ट देखा होगा कोचिंग का, ऑसम है. मतलब तो इस साल तो आप लोगों के पास और अच्छा एडवांटेज आ गया कि मतलब ऑल ओवर इंडिया बंदे यही सोच के बैठे होंगे यार मेरा नहीं होगा, बट पता है उन्हीं का होगा जो इस समय लगे हुए हैं. तो प्लीज़ लगे रहो, करते रहो. मेरा तो यही कहना है कि प्लीज़ करो. पता है हमको मतलब लोगों को लगता है कि NITs मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है वो सब तो मिल जाएंगे, पर पहला फोकस आपका सिलेक्शन पर होना चाहिए. अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो मिलेगा कहाँ से कोई चीज़. तो प्लीज़ सेलेक्ट होइए. पता है HBTI में, HBTU में, जो जिस समय HBTU यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें भी इतने अच्छे स्कोप हो गए. हमारे जो सीनियर्स पास आउट हो चुके हैं, तो या जो अभी हैं 3rd ईयर में और जिनका प्लेसमेंट हो गया है यार, मतलब लिटरली बहुत अच्छा प्लेसमेंट है उनका. तो और हम मतलब हमारा भी अब जुलाई के बाद फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे भी प्लेसमेंट्स आ रहे हैं. मीडिया टेक जैसी कंपनी आ रही है, ग्लोबल लॉजिक आ रही है, IBM आ रही है, ठीक है. और क्या कहते हैं, मैनी अदर कंपनीज आर कमिंग इन अ रो. तो प्लीज़ मेहनत करिए. और ये मतलब ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं होगा. कैसे नहीं यार, हो जाएगा. जब ऑल ओवर इंडिया बच्चे बैठते हैं
जब उनका हो जाता तो आपका भी हो जाएगा। प्लीज़ 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 मेहनत करते रहिए और सर को बिल्कुल भी निराश मत करिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड, या जैसे बहुत लोगों को होता है कि सर ऐसा सर वैसा, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा कांटेक्ट नंबर सबके पास है। माय नेम इज़ विकास सिंह। आप सर से बोलोगे, सर मेरा नंबर दे देंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं एनी टाइम। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ हेल्प के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मैथ्स तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग को बिल्कुल भी मत हाथ से निकलने दीजिए। कंप्यूटर्स को लोग कह देते हैं अरे ठीक है, BC वाले सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा और BSc वाले सोचते हैं मैंने पढ़ी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पता है, मतलब मेरे टाइम में 17 में जब हम लोगों ने दिया था, 18 में जब मैंने दिया था, तो कई सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए थे। तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखिए, रिपीटेड क्वेश्चंस भी कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। और बाकी कंप्यूटर्स का तो यार फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ आता है, तो आप आराम से 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। इंग्लिश का मैं नहीं कहता, इंग्लिश का तो उसी टाइम हो जाएगा आपका, पर रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर्स पे फोकस करिए और फॉर्मूलों को धड़ रिवाइज करिए। मॉक, मतलब मेरे हिसाब से तो पर डे आपको 2 से 3 मॉक करने चाहिए, पूरा टाइमर लगा के, और उसको एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज करते रहिए, प्लीज़ करिए। अगर इतना कर लिया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। प्लीज़ करिए, अपने लिए करिए, सर के लिए करिए, और सर के लिए नहीं तो प्लीज़ अपने लिए तो करिए। और बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Twinkle Agarwal. I am pursuing MCA from NIT Trichy. मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस देना चाहूँगी जो शायद आप लोगों के इस लॉकडाउन के पीरियड में काम आ सके फॉर ऑल द NIMCET aspirants. First of all, I know this is a period of anxiety and pressure for all of us because 24/7 घर पे रहना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। दैट टू विदाउट आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑब्वियसली आउटसाइड। तो बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, एंजाइटी होती है, बट यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम फॉर मेकिंग अ बेटर फ्यूचर। पीपल आर देयर जो इस टाइम में स्टडी कर रहे हैं, जो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, एंड लाइक whosoever who are appearing for the competitive exams, वो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिससे कि अच्छा स्कोर कर पाएँ। एंड एज NIMCET इज़ वन ऑफ द competitive exams, तो सिर्फ आपकी मेहनत मैटर नहीं करेगी, इट विल मैटर कि बाकियों ने भी कितनी मेहनत करी। इट इज़ अ रिलेटिव एग्ज़ाम, आपकी रैंक उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से सबने मेहनत करी होगी। तो यू हैव टू कम्पीट विद देम, तो आपको भी उस लेवल की थोड़ी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। सो यू शुड ऑल्सो यूटिलाइज दिस पीरियड। सेकेंड थिंग ऑल्सो दैट अगर आप ये सोच रहे हो कि जब NIMCET की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी या जब थोड़ा टाइम बचेगा तब आप चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करना या प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि अभी शायद अगर आप अभी आपके पास वो कंसेप्ट मतलब आपके लिए फ्रेश होंगे, तो अभी आपको उन्हें रिवाइज़ करने में लाइक कम टाइम लगेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 आवर्स लगेंगे। लेकिन बाद में जब आप सोचोगे कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ करना स्टार्ट करो, इट विल टेक मोर टाइम, तो आपको चीज़ें फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब तक जितनी मेहनत करी फॉर द पीरियड ऑफ 1 year और 2 year आपने जितनी दी, वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगी, या आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना आपको शायद लगाना पड़ता है एक्चुअली में अगर आप इस टाइम पर मेहनत करते हो। तो बाद में आपका काम कम हो जाए, उसके लिए बेटर है कि आप अभी भी टाइम को रिवाइज करो। थर्ड थिंग, आपका टाइम मतलब यूज़ हो और आप प्रिपेयर भी कर लो एज, उसके लिए आई वुड सजेस्ट आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो घर पे रह के। ऑब्वियसली मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है एंड मार्च एंड अप्रैल इज़ अ पीरियड जब आप मॉक टेस्ट देते हो और प्रैक्टिस करते हो खाली। एंड एज क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हुए अभी तक। तो आई वुड सजेस्ट जो कि आपके पास मॉक टेस्ट अगर कुछ है नहीं है तो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप मॉक टेस्ट दो तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। लाइक अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है 2 घंटे में लेकर आओ, फिर उसकी एनालिसिस करो, सो इट विल हेल्प यू। उससे आपको फ़ायदा ही होगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, आप एनालिसिस कर पाओगे कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। जो आपको वीक पॉइंट्स पता चल रहे हैं आप उनको थोड़ा टाइम दे सकते हो इस टाइम पर भी कि पढ़ने के लिए उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर सकते हो टॉपिक्स पर भी, ताकि पास टाइम में हो सकता है। एंड फोर्थ थिंग मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी दैट इस टाइम पर भी थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकालो फॉर समथिंग विच रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। जो भी करके आप यू शुड परस्यू सम हॉबी,
कुकिंग करके या बुक्स रीड करके, जो भी आपको अच्छा लगता है थोड़ा टाइम उस चीज़ के लिए दो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाओगे तब भी आपके लिए तो आप जितनी पढ़ाई करोगे दैट विल बी ऑल वेस्ट. सो स्टे होम, stay safe, and all the best for NIMSET 2020. Thank you. Hello everyone, I'm Shivangi Dwivedi from NIT Kurukshetra, hoping for you all to be safe and at your homes because of this pandemic that the world is facing currently. It has affected almost every aspect of our life, including the NIMSET preparation 2020, as you people are not able to attend the classes regularly, give mocks properly, and you must also be missing the aura that makes you motivated to work. But this is the time that you can make a change because nothing stays forever and the situation will also fade away. But the precious time that your aspirants are getting during this lockdown won't come back. So please do not indulge yourself in activities that are not worth it because they can cause you your NIT and your dream as well. Rather, be consistent. Focus on the mocks that are being provided on the apps. Watch the videos on YouTube that Nitin sir has uploaded and be continuously in touch with Nitin sir for any sort of query or any problem that you faced during your studies. Share almost everything with Nitin sir. He is the best guide. He has best possible solutions for every problem that you must be facing during this time. And I'll also say that if you feel that you're not able to study properly at home like you used to do in the coaching, then you can also do something like you can prepare a setup. You can isolate yourself in one of the rooms in your house for 4 to 5 hours continuously and then have a break and then again study. In this way you can prepare yourself. Give mocks honestly at home. Analyze yourself with complete accuracy and honesty. Because you are at a position now that you can analyze yourself because you have studied for a lot of time in the coaching. To be at a better position, you are the one who needs to work hard during this time. Do not think that you have a lot of time and relax, but practice every day so that you are able to achieve your dream. And as we all know that the entire syllabus is completed a lot of times in the coaching itself, so it's time for you to be honest and work hard for yourself. So stay at home, stay safe and keep working towards your goal. Thank you. Hello guys, my name is Manish Majwar. I have a message for all the aspirants of NIMSET 2020. Guys, I know that this is a very crucial period for all of us, especially for you, and we really don't know कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और चीज़ें कब दोबारा ट्रैक में आएंगी, और ऐसे टाइम पे पेपर कब होगा किसी को कुछ आइडिया नहीं. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि हम सब लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं, आपके अलावा सारे कॉम्पिटिटर्स ये चीज़ फेस कर रहे हैं. तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता. सो गाइस, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करने का कि कौन से टॉपिक्स आपके रह गए हैं, किन टॉपिक्स को आप करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे, तो उन टॉपिक्स को कीजिए आप. और पूरे महीने भर का टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस दिन ये करूँगा, इस दिन वो करूँगा. ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. I mean, मैं तो नहीं कर पाता हूँ. तो इंस्टेड ऑफ दैट आप उस पर्टिकुलर डे का टाइम टेबल बनाइए कि आपको इस डे में मैथमेटिक्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड सो ऑन. उससे क्या होगा, जब आपकी चीज़ें होती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो एक इनर कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर जो बहुत बूस्टअप करेगा आपको. बाकी आई एम डैम श्योर कि नितिन सर ने आपको स्टडी मटेरियल काफ़ी दे रखा होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड. उसके बावजूद भी देयर आर सो मेनी वीडियोज़ इन देयर चैनल INPS के. और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यूट्यूब है आपके पास, गूगल है, उस पर आप अपनी क्वेरी लिखिए, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास चीज़ों को रिवाइज़ करने का और उन टॉपिक्स को क्लियर करने का जिसमें आपको डाउट है. तो इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कीजिए एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग जो कि मुझे नितिन सर ने बताई थी कि लाइफ में सबसे आसान चीज़ क्या है जिससे इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? पढ़ाई करना. गाइस, पढ़ाई करने से आसान चीज़ कुछ नहीं है लाइफ में. तो आपके पास इतना अच्छा मौका है चीज़ों को समझने का, रिवीजन करने का, तो सही जगह टाइम इन्वेस्ट कीजिए. जब थोड़ा चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं
तो आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत होम वर्कआउट, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा। बाकी अच्छा कॉलेज बहुत मैटर करता है गाइस, कोई कुछ भी कह दें, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छे कॉलेजेस में मिलेंगी वो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर जो भी इतने लाखों कॉलेजेस खुले हुए हैं जो एमसीए करा रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। सो अभी टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए।